Hi everyone, hope you all are doing well. So in the last video we have discussed the 2012 IBPS AFO papers. So today we will be discussing the 2013 IBPS AFO paper because some of the students have asked for the previous year recent papers. So soon we will be uploading the further questions as well. So for now let's discuss the 2013 paper and let's begin with the first question. The first question is the total number of KVKs in India is. Options are A 722, B 665, C 765, D 650 या फिर E 705. So here the appropriate option is option number A, that is 722. So until now मतलब आप अभी तक 2021 तक there are 722 KVKs in India. Next is the second question. Second question is for larger size seed which implement is used. So question में पूछा गया है to sow the larger size seeds which type of implements are used. Options are A dibbler, B transplanter, C planter, D seed drill या फिर E all of this. So the appropriate answer is option number C. So ऑप्शन नंबर सी में दैट इज प्लांटर. तो प्लांटर को इस्तेमाल किया जाता है फॉर प्लांटिंग द लार्ज साइज सीड्स. नेक्स्ट इज द थर्ड क्वेश्चन. थर्ड क्वेश्चन इज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन इज सिचुएटेड इन. द ऑप्शंस आर ए जोधपुर, बी देहरादून, सी उत्तराखंड सी दिल्ली, डी कानपुर या फिर ई भोपाल. द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन नंबर बी Dehradun. So Indian Institute of Soil and Water Conservation is in Dehradun and Dehradun is located in Uttarakhand. Uttarakhand में स्थित है Dehradun. Fine. Now let's move forward towards the next question. The next question is fourth, that is groundwater level is measured by. तो groundwater level को किससे measure किया जाता है? Options are A galvanometer, B piezometer, C thermistor, D anemometer and E all of this. So the correct option here is option number B, that is piezometer. तो piezometer को use किया जाता है for measuring the groundwater. Now option number fifth, question number fifth, we can say the pid variety which is famous for meat and producing young ones are. Options are A white Yorkshire, B Duroc, C Berkshire, D Chester Whites या फिर E Landrace. So the appropriate option here is option number A, that is white Yorkshire is the एक ऐसा variety है जो कि which is very much good for producing meat and young ones. Now moving forward towards the sixth question. Egg color depends on. So egg का जो color है वो कौन से पिगमेंट पे डिपेंड रहता है? तो ऑप्शन इन फ्रंट ऑफ अस आर ए क्लोरोफिल, बी एल्ब्यूमिन, सी योक, डी ज़ैंथोफिल या फिर ई नन ऑफ दिस. द अप्रोप्रिएट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी ज़ैंथोफिल. सो ज़ैंथोफिल जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर येलो कलर in plants as well as in animals. So yellow color in plants as well as in animals. और यहाँ पे जो egg है that is an animal portion. So yellow color of the egg yolk is responsible for the pigment xanthophyll. Now let's move forward towards the seventh question. Highest soil salinity tolerant crop is. इनमें से सबसे ज़्यादा खारे पानी को कौन सा क्रॉप झेल सकता है? Options are A wheat, B oats, C barley, D lentil या फिर E soybean. So the appropriate option here is option number C, that is barley. तो barley एक ऐसा crop है जो कि salinity tolerant में सबसे आगे है इनमें से. Now the eighth question. चोलई is the wheat of. तो चोलई इनमें से कौन से crop में wheat के तौर पे सबसे ज़्यादा पाया जाता है? So the options in front of us are A oats, B wheat, C lentil, D maize या फिर E soybean.
सो द एप्रोप्रिएट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। तो मेज में पाया जाता है, ये जो छोलई है, छोलई नामक वीट जो है वो मेज में पाया जाता है। एंड अपार्ट फ्रॉम मेज इट इज ऑल्सो फाउंड इन बाजरा, बाजरा में पाया जाता है एक, और दूसरे नंबर पे पाया जाता है ज्वार पे। सो चोलई नामक वीट जो है बेसिकली तीन तीन क्रॉप पे पाया जाता है, दैट इज मेज, देन बाजरा और फिर जोवर, ये याद रखना है आपको। नाउ द 9th क्वेश्चन, सीड रेट ऑफ टोमेटो इज, टोमेटो का सीड रेट इनमें से कौन सा है? पर हेक्टेयर के लिए पूछा गया है। 600 से 700 ग्राम, बी 120 से 200 ग्राम, सी 300 से 400 ग्राम, डी 400 से 500 ग्राम, या फिर ई 800 से 900 ग्राम। सो द अप्रोप्रिएट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 400 से 500 ग्राम। सो 400 से 500 ग्राम पर हेक्टेयर बीज लगता है टोमेटो का। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स द 10th क्वेश्चन, सोड कल्चर इज रिलेटेड टू, इनमें से कौन से रिलेटेड है सोड कल्चर? ऑप्शंस आर ए ग्रास, बी ग्रामिनी क्रॉप्स, सी लेग्यूम्स, डी फ्रूट प्लांट, या फिर ई वेजिटेबल क्रॉप्स। सो द सोड कल्चर इज रिलेटेड टू ग्रास, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ मूविंग ऑन टुवर्ड्स द 11th क्वेश्चन, हाईएस्ट कैल्शियम इज फाउंड इन, इनमें से कौन से पौधे पे हाईएस्ट कैल्शियम की ज़रूरत या फिर हाईएस्ट कैल्शियम पाया जाता है, सो इनमें से कौन से फ्रूट्स में हाईएस्ट कैल्शियम पाया जाता है? ऑप्शंस आर ए मैंगो, बी मैंड्रिन, सी लीची, डी सपोटा, या फिर ई बेर। सो द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन नंबर सी लीची। तो लीची में सबसे ज़्यादा कैल्शियम की मात्रा पाई जाती है। नाउ द 12th क्वेश्चन, कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर इन जीडीपी। तो जीडीपी इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, तो जीडीपी में एग्रीकल्चर का कितना प्रतिशत कंट्रीब्यूशन है? सो बेसिकली ये जो क्वेश्चन है ये 2013 में पूछा गया था। अभी रीसेंट डाटा के हिसाब से देखा जाए, मतलब कि अभी अगर रीसेंट डाटा के हिसाब से देखा जाए, एज पर द रिपोर्ट ऑफ 2019-20 आप कह सकते हो, देन द कंट्रीब्यूशन इज 7.8% अराउंड, राइट, 7.8% के अराउंड है। अभी इस क्वेश्चन को लेते हैं, तो हमें इनमें से मोस्ट अप्रोप्रिएट ढूंढना है। सो ऑप्शंस आर ए 16%, बी 20%, सी 10%, डी 25%, या फिर ई 5%। तो इसके अप्रोक्सीमेटली हमें ए दिख रहा है, तो ए वुड बी द आंसर, बट अगर रीसेंट लिया जाए देन 17.8% इज द कंट्रीब्यूशन। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स द 13th क्वेश्चन, हु इज द न्यू चेयरमैन ऑफ नाबार्ड? तो नाबार्ड के नए चेयरमैन कौन हैं? ऑप्शंस आर ए हर्ष कुमार बनवाला, बी एम एस स्वामीनाथन, सी डॉक्टर जी आर चिंतला, डी हबीबुल्ला, या फिर ई नन ऑफ दिस। सो एज पर द लेटेस्ट न्यूज दैट इज 2020 के हिसाब से ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन, जी आर चिंताला is the present new chairman of NABARD. Now the 20th question, buttoning in cauliflower is due to, cauliflower में buttoning क्यों किया जाता है? मतलब कौन से डेफिशिएंसी के वजह से, कौन से मिनरल्स की डेफिशिएंसी की वजह से होता है? सो ऑप्शंस आर ए पोटेशियम, बी जिंक, सी कॉपर, डी नाइट्रोजन, या फिर ई फॉस्फोरस। So the appropriate answer is option number D, that is nitrogen. तो नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी की वजह से कॉलीफ्लावर में बटनिंग होती है। Now the 15th question, Downy mildew in maize is due to, मेज में डाउनी मिल्ड्यू नामक जो बीमारी है वो इनमें से किन के द्वारा होती है? ऑप्शंस आर ए वायरल, बी फंगस, डी बैक्टीरिया, डी फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर, या फिर ई नन ऑफ देम। सो द एप्रोप्रिएट आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज फंगस। तो फंगस के वजह से जो है डाउनी मिल्ड्यू होता है मेज में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज
हाईएस्ट कॉफी प्रोड्यूसिंग स्टेट, इनमें से कौन सा स्टेट हाईएस्ट कॉफी प्रोड्यूस करता है? सो द ऑप्शंस आर ए सिक्किम, बी उड़ीसा, सी तमिलनाडु, डी हमारे पास है वेस्ट बंगाल, या फिर ई कर्नाटका. सो द अप्रोप्रिएट आंसर हियर वुड बी ऑप्शन नंबर ई, दैट इज कर्नाटका. सो कर्नाटका इज द हाईएस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉफी. फाइन. नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द 17th क्वेश्चन. टोटल एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स ऑफ प्लांट्स. सो टोटल एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स ऑफ प्लांट कितने होते हैं? The options are A 10, B 17, C 14, D 12 या फिर E 15. So the appropriate answer here would be option number B 17. तो total essential elements जो है वो 17 होते हैं. फाइन. अब आपको लिस्ट आउट करना है कि ये 17 कौन से एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो आपको कमेंट सेक्शन में लिख कर बताना है. Now let's move forward towards the 18th question. Yellow spot in citrus is due to. जो citrus मतलब कि नींबू वाले पौधे, नींबू हो गया फिर ऑरेंज हो गया, इनको हम सिट्रस फ्रूट कहते हैं. तो येलो स्पॉट जो है सिट्रस में, वो इनमें से किन की डेफिशिएंसी की वजह से होता है? ऑप्शंस आर ए कोबाल्ट, बी मैग्नीशियम, सी मोलिब्डेनम, डी कॉपर या फिर ई जिंक. So the correct option here is option number C, that is molybdenum. तो molybdenum की डेफिशिएंसी की वजह से साइट्रस में हमें येलो स्पॉट देखने को मिलता है. नेक्स्ट इज द 19th क्वेश्चन. नाइट्रोजन रिक्वायरमेंट इन टबैको क्रॉप. तो हमें नाइट्रोजन रिक्वायरमेंट बताना है टबैको क्रॉप का पर हेक्टेयर के हिसाब से. सो द ऑप्शंस आर ए 10 to 20 kg per hectare, B 5 to 10 kg per hectare, C 30 to 40 kg per hectare, D 60 to 80 kg per hectare या फिर E 40 to 50 kg per hectare. So the appropriate answer is option number C, that is 30 to 40 kg per hectare. Now the 20th question. Seed rate of pure mustard crop. प्योर मस्टर्ड क्रॉप का सीड रेट कितना है पर हेक्टेयर के हिसाब से? The options in front of us are A 3 to 4 kg per hectare, B 4 to 5 kg per hectare, C 6 to 8 kg per hectare, D 5 to 6 kg per hectare या फिर E 10 to 12 kg per hectare. So the appropriate answer is option number D, that is 5 to 6 kg per hectare चाहिए होता है seed for pure mustard crop. Now the 21st question. Spacing of chickpea. तो चिकपी की स्पेसिंग कितनी होती है? नाउ व्हाट इज स्पेसिंग? स्पेसिंग को अगर हम आसान भाषा में समझे तो पौधे से पौधे का फासला. सो द डिस्टेंस बिटवीन, सपोज दिस इज अ चिकपी ट्री प्लांट, सॉरी दिस इज अ चिकपी प्लांट, द डिस्टेंस बिटवीन टू चिकपी प्लांट, और वी कैन से द पौधे से पौधे का फासला, दैट इज नोन एज द स्पेसिंग. तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि चिकपी में पौधे से पौधे का फासला कितना होता है? ऑप्शंस आर 30 into 20 सेंटीमीटर, या फिर बी 30 into 45 सेंटीमीटर, सी 40 into 10 सेंटीमीटर, डी 20 into 5 सेंटीमीटर या फिर ई 30 into 60 सेंटीमीटर. अब समझते हैं ये जो पहला 30 है, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन टू प्लांट, एंड ये जो 20 है, दैट इज डिफरेंस बिटवीन, सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन टू रोज एंड दिस इज द डिफरेंस बिटवीन टू प्लांट्स. आई होप इट्स क्लियर. सो द appropriate answer here is option number C, that is 30 into 10 centimeter. Now the 22nd question. Carbon is to nitrogen ratio of normal soil. तो carbon is to nitrogen ratio of normal soils are, options are 12:1, B 5:1, C 10:2, D 15:5 या फिर E 15:1. So the appropriate option here is option number A, that is 12:1. So normal soil में carbon is to nitrogen का ratio 12:1 होना चाहिए. Now the 23rd question. Largest fish producing state in India. इनमें से कौन सा
लार्जेस्ट फिश प्रोड्यूसिंग स्टेट है इंडिया का? ऑप्शंस आर ए ओडिशा, बी केरला, सी तमिलनाडु या फिर डी महाराष्ट्र. So the appropriate answer here would be option number, that is Kerala. So among this, Kerala is the highest producer. So इनमें से options में से Kerala is the highest producer. Now let's move forward towards the 23rd question. The angle of disc plough is. So जो disc plough disc जो लगे होते हैं disc plough में, उसके angles कितने होते हैं? Options are A 15 to 20 degree, B 30 to 35 degree, C 10 to 15 degree या फिर D 30 to 45 degree. So the appropriate answer here would be option number A, that is 15 to 20 degree होता है. Now let's move forward towards the 25th question. Test weight of groundnut. Groundnut का test weight कितना होता है? The options are A 700 to 900 gram, B 200 to 300 gram, C 300 to 700 gram, D 2000 to 250 gram, 2500 gram या फिर E 1200 से 1500 gram. So the appropriate answer here would be option number B, that is 200 से 300 gram. Now the next question, 26th question. National Commission on Farmer started in. तो नेशनल कमीशन ऑन फार्मर कौन से साल स्टार्ट हुआ था? सो द ऑप्शंस हियर आर ऑप्शन नंबर ए 2010, ऑप्शन नंबर बी 2012, ऑप्शन नंबर सी 2005, ऑप्शन नंबर डी 2004 या फिर ऑप्शन नंबर ई 2020. सो द एप्रोप्रिएट आंसर हियर वुड बी ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 2004. तो 2004 में स्टार्ट हुआ था नेशनल कमीशन ऑन फार्मर. नेक्स्ट इज 26th क्वेश्चन. पूसा सहयोग इज अ वेराइटी ऑफ. तो पूसा सहयोग जो है वो इनमें से कौन से फ्रूट या फिर कौन से वेजिटेबल की वेराइटी है? द ऑप्शन इन फ्रंट ऑफ अस आर ए साइट्रस, बी क्यूक्यूम्बर, सी मैंगो, डी पापाया या फिर ई लेडी फिंगर. So the appropriate answer is option number B, cucumber. So पूसा सहयोग जो है वो एक cucumber की variety है. Now the 28th question. Shattering process is related to. तो shattering process जो है इनमें से कौन से crop से related है? Options are A lentil, B soybean, C wheat या फिर D gram. The appropriate answer here would be option number B, that is soybean. Now the next question. Next question is 29th. Highest area of fruit crop in India. तो इनमें से कौन सा फ्रूट सबसे ज़्यादा एरिया ऑफ कल्टीवेशन कवर करता है हमारे प्यारे भारत के अंदर? ऑप्शन आर ए मैंगो, बी पपाया, सी लेमन, डी ऑरेंज या फिर ई बनाना. सो द एप्रोप्रिएट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज फलों का राजा आम. Fine. Now the next question is 30th question. 30th question में पूछा गया है for best chicken hen breed is. तो for the meat production purpose, which is the best breed of chicken or hen we can say. Options are A Bursa, B Telecherry, C White Leghorn, D Orpington या फिर E Rhode Island Red. So the appropriate answer here is option number C, that is White Leghorn is the best variety of hen for chicken या फिर meat production के लिए. Now the 31st question. Central Sheep and Wool Institute is located in. So I'm really sorry for the spelling mistake. It's ship. So Central Sheep and Wool Institute is located in. Options in front of us are A जयपुर, B जोधपुर, C जूनागढ़, D अंबिका नगर या फिर E श्रीनगर. So the appropriate answer here is option number D, that is अंबिका नगर. तो हमारा जो सेंट्रल शिप एंड वुल इंस्टीट्यूट है वो अंबिका नगर में स्थित है. अब अंबिका नगर कहाँ है? सो अंबिका नगर इज राजस्थान. सो अंबिका नगर जो है वो राजस्थान में है एंड वहाँ पे स्थित है हमारा सेंट्रल शिप एंड
Wool Institute. Now the next question. Next is 32nd question. Which of the following can make the soil of color white? तो इनमें से कौन से किसके प्रेजेंस में सॉइल का कलर जो है वो वाइट हो सकता है? ऑप्शंस आर ए कैल्साइट, बी आयरन ऑक्साइड, सी नाइट्रोजन, डी ग्लूकोनाइट या फिर ई नन ऑफ दिस. तो इसको थोड़े एक्सप्लेनेशन में बताती हूँ. दैट इज देखिए, रेड सॉइल जो है हमारा उसका कलर रेड होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ आयरन ऑक्साइड. तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा. एंड नाइट्रोजन की वजह से कोई स्पेशल कलर चेंज होता नहीं, ये तो ग्लूकोज का एक पार्ट है. सो द अप्रोप्रिएट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज कैल्साइट. कैल्साइट जो है वो वाइट इन कलर होता है. सो दैट इज वाई इट्स रिस्पॉन्सिबल. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, 33rd क्वेश्चन. नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल मार्केटिंग इज लोकेटेड इन. सो जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल मार्केटिंग है वो कहाँ पे स्थित है? ऑप्शंस आर ए करनाल, बी जयपुर, सी लखनऊ, डी हैदराबाद या फिर ई मुरादाबाद. सो द अप्रोप्रिएट आंसर हियर वुड बी ऑप्शन नंबर बी, दैट इज जयपुर. तो जयपुर में स्थित है हमारा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल मार्केटिंग. सो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड इन जयपुर. Next is the 34th question. Which of the following region receives monsoon first? इनमें से कौन से रीजन में सबसे पहले मॉनसून को देखा जाता है? ऑप्शंस आर ए बे ऑफ बंगाल, बी कोस्टल रीजन ऑफ गुजरात, सी कोस्टल रीजन ऑफ केरला, डी हिमालयन रीजन या फिर ई कोस्टल रीजन ऑफ महाराष्ट्र. सो सबसे पहले जो है मॉनसून आता है सी. ये देखिए, ये हमारा इंडिया का लोअर पोर्शन हो गया. दिस इज आर इंडियाज लोअर पोर्शन. फिर यहाँ से उठ के आता है वेस्ट बंगाल वाला पार्ट. सो सबसे पहले ऑब्वियस सी बात है ना, मॉनसून विल फर्स्ट अराइव एट दिस पोर्शंस. सो दिस इज द पोर्शन इन केरला. फाइन. तो सबसे पहले मॉनसून जो आता है कोस्टल रीजन ऑफ केरला में. नेक्स्ट इज द 35th क्वेश्चन. रत्ना इज अ वेराइटी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रूट्स. सो सबसे पहले तो बता देती हूँ दैट रत्ना जो है बेसिकली वो दैट इज अ वेराइटी ऑफ राइस. जो रत्ना है, रत्ना दैट इज अ वेराइटी ऑफ राइस. आपने सुना ही होगा, छोटे से आप पढ़ते आ रहे हो, जया एंड रत्ना आर द वेराइटी ऑफ राइस विच इज हैविंग अ मेजर रोल ड्यूरिंग ग्रीन रिवोल्यूशन. बट यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है कि रत्ना कौन सी फ्रूट वैरायटी का नाम है? ऑप्शंस आर ए ग्वावा, बी बनाना, सी पपाया, डी मैंगो या फिर ई एप्पल. सो द एप्रोप्रिएट आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर डी, दैट इज मैंगो. तो मैंगो की वैरायटी है रत्ना. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 36th क्वेश्चन. 36th क्वेश्चन में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रिजल्ट ऑफ मीटिंग ऑफ टू ब्रीड्स ऑफ एनिमल ऑफ द सेम स्पीशीज. सेम स्पीशीज बट डिफरेंट एनिमल्स से मिलकर कौन सा, इनमें से कौन सा जानवर बना है? ए कैट, नो. बी टाइगर, नहीं. सी हॉर्स, नो. डी म्यूल, यस. सो म्यूल इज द करेक्ट ऑप्शन. अब आपको बताना है म्यूल के पेरेंट ऑर्गेनिजम्स कौन कौन है. कमेंट सेक्शन में आपको लिखना है. नेक्स्ट इज द 37th क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप इज मेनली ग्रोन इन बरक वैली. सो बरक वैली के बारे में लेट मी टेल यू आउट. सो बरक वैली इज लोकेटेड इन असम. बरक वैली जो है वो असम में लोकेटेड है. सो बरक वैली इज लोकेटेड इन असम. अब आपको हिंट मिल गया होगा. नाउ टेल मी दैट where is which of the following is special, or which of the following is special crop in Barak Valley. Options are A sugarcane, B maize, C jute, D tea या फिर E cotton. So Barak Valley is famous for number C, that is jute. jute के लिए famous है Barak Valley, और Barak Valley is in Assam. Now the last question. Which of the following has the largest share in the import bill of India? इंडिया के import bill में सबसे ज़्यादा जिक्र इनमें से किस टॉपिक के ऊपर है, या फिर सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किस पे किया जाता है? ऑप्शंस आर ए पेट्रोलियम एंड क्रूड ऑयल,
B. National gases, C. Machine tools, D. Gold या फिर E. Food. So the correct option here is option number A, that is petroleum and crude oil. तो हमारा जो क्या बोलते हैं इम्पोर्ट बिल है उसका सबसे ज़्यादा हिस्सेदार पेट्रोलियम और क्रूड ऑयल है. So here comes the end of the 2013 IBPS AFO paper. Hope you liked it out, and do not forget to hit the like button and to subscribe to our channel. So stay tuned for the upcoming video, and soon we will be uploading the next year papers. Bye bye. Jai Hind.